Yes, students, as we have discussed that according to the Ohm's law, V is equal to IR, means this current depends on resistance as well as potential difference. Means if we keep the potential difference constant, then I will depend, means current will depend upon your resistance, because I is inversely proportional to 1 by R. We can say that if resistance is increases, the current will be decreased, or vice versa. We are having any device which gives resistance. Any device which gives resistance is called resistor. So at our house, there are so many resistors are present which may be connected by the different ways. Okay, so today we will discuss about the combination of the resistors in the different ways. The combination of the resistors can be two ways, either one by your parallel combination, second one is known as your series combination, right? So these resistors can be joined by the parallel combination or the series combination. How the resistance can be connected in the series or how they are be connected in the parallel combination, we will discuss one by one in the detail with the activities given in your book. So first of all, we can make a diagram to show that how the resistors can be joined in the series combination or the parallel combination. How? For example, we are having 3 resistors, right? Having different resistance. Why I said different resistance? Because at our home there is a fan is present, AC present, your fridge is present, washing machine है, आपका oven है, आपका electric press है. There are so many electrical appliances are there at your home which are having the different resistance. So whether when we are connected these resistance in the parallel combination or the series combination, then the current will pass through them same or different, whether they will follow the Ohm's law or not. We will discuss each thing. कि जब हम इनको सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं तो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वोल्टेज वो एक जैसी लेते हैं या डिफरेंट लेते हैं. सेकेंडली वे वेदर दे विल फॉलो द ओम्स लॉ और नॉट. तो हमने फॉर एग्जांपल 3 रजिस्टर्स लिए, R1, R2 and R3, having the 3 different resistors. Either they will be connected in the series or the parallel combination. As all of you know that this is the symbol of the resistance. It is a circuit symbol of the resistance. To connect the resistance in the series, what we have to need? First resistor, second ammeter, third is voltmeter, fourth cell या बैटरी, a plug key, and 6th one is connecting wire. Right? So these are the main things which we need when we are making the combination of the resistors either in the parallel combination or the series combination. So how they can be connected in series or they can be connected in the parallel combination. First of all, for example, if we are having the 3 resistance R1, R2 and R3, means all these are connected in the series combination. What does it mean? Series combination means they are connected one by one. For example, if we are having the 3 resistance, they can be connected in the series combination like this, one after the other. एक के बाद दूसरे को हमने क्या करना, तो कनेक्ट करना है. That will be in the series and these are connected with the one connecting wire, and here
is your cell or battery. That will be 3 battery. Plug key is there. Always remember that a meter will be always connected in the series combination, whether we are using the parallel combination of resistance or whether we are using the series combination of the resistance. Ammeter will be always in the series combination to check the current flowing through the circuit. ये सर्किट के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो चेक करने के लिए. दिस इज अ पॉजिटिव, नेगेटिव. As flow of electron is here, so flow of current will be there from this one. And we remember that negative will be connected with negative and positive will be connected with your positive. अब हमने इसमें अमीटर तो लगा दिया, अब हमारा क्या बचा? वोल्टमीटर. That voltmeter should be connected along the resistance in a parallel combination, right? Understand? So what does it mean? We are having the 3 resistance, R1, R2 and R3 are having the different combination and they are connected with the connecting wire, cells or the batteries, a plug key, an ammeter and a voltmeter. Ammeter will be always connected in the series to check the current, whether the current is flowing through the wires or the not. Voltmeter is always connected in the parallel combination to check the potential difference between the two ends. दो एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने के लिए वोल्टामीटर को हमेशा किसके अंदर लगाते हैं? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर लगाते हैं. अंडरस्टैंड? दैट विल बी अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन. अभी मैंने इसका एक्सप्रेशन नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ अभी बता दें कि सीरीज में आपको कैसे जोड़ना है और आपको उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे जोड़ना है. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में समझ में आ गया, ऐसे जोड़ सकते हैं. अब मान लो मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ना है, so we are having the same 3 resistance are there. They will be like this. Again, here is plug, switch, battery, switch, ammeter, and we remember the voltmeter will be always connected in the panel. अब ये तीनों के तीनों एक के साथ जुड़े हैं, so we can connect like this, right? Here is positive, negative, negative, positive, positive, negative. Current will be flown like this, and here to here, and this one to this one. And this is your R1, R2, and R3. Means, what does it mean? When the current is flowing through the circuit, the current will divide it into the 3 parts: R1, R2, and R3. And as there will be a potential difference between them. यानी यहाँ से यहाँ तक के बीच का 2 एंड है. इसी एंड पे आपका क्या किया गया? तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच किए गए हैं, जिससे आप बता सकते हो कि इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में मैं सिंगल इसके साथ अटैच करूं या इसके साथ अटैच करूं या यहाँ से अटैच करूं, यहाँ से करूं, यहाँ से करूं या यहाँ से करूं, हर डायरेक्शन में जो वोल्टेज होगी दैट विल बी द सेम. मींस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी द सेम. एंड व्हाट डज इट मीन? द करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, इट विल डिवाइड in how many parts? 3 parts. One will be like this, this and this. It will be split. If it will be split, then the current will also change in the parallel combination, and in this the current is flowing through a single line, then the current will be same. So this is the way how to connect the parallel and the series combination, right? कि हम उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं ये हमने बताया किसके अंदर? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर. अब जब हमने इसको आपके रजिस्टर्स को पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया है, whether they are withdraw the same current or the potential difference, either they will follow the Ohm's law, or what will be the potential is there, what will be the current there, or how can you calculate the total resistance. We will discuss all one by one. So first we will discuss that resistance in series combination. Okay, ये सिर्फ ये बताया गया इसमें कि इनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट हम करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन. मींस व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सीरीज. यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, सो दैट आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन. ये हमारा क्या 3 ओम. ओके, so what we have to do? यहाँ से शुरू कर देना. Yes, resistance in series में क्या we have used the 3 resistance. One will be 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm. Means the resistance will be different from the one another.
यानी यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस प्रेजेंट एट योर होम। मान सकते हैं, जूम कर सकते हैं कि मान लो एक आपका बल्ब है, एक आपकी वॉशिंग मशीन है, एक आपका गीजर है या ओवन वगैरह कुछ भी हो सकता है। और इन तीनों को मैंने क्या किया, सीरीज में ज्वाइन कर दिया, यानी एक के बाद एक को मैंने क्या किया, ज्वाइन किया एक ही वायर के साथ। अलग अलग वायर नहीं कि एक सीरीज में ज्वाइन किया, यानी एक मैंने यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, एक यहाँ रख दिया, और तीनों को आपस में एक ही वायर से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को मैं मान लो एक्स बोलती हूँ और इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, वाई, राइट। तो इन दो पॉइंट के बीच में मैंने क्या किया, तीनों के तीनों एक ही लाइन में ज्वाइन कर दिया, दैट विल बी अ सीरीज कॉम्बिनेशन। And when you will check the current passing through that by switch on the plug or the key, that you will check the current, that will be current I. आपने करंट को मेजर किया और करंट कितना आया आपका, आई आया, राइट। आफ्टर दैट रिमूव दिस आई अमीटर फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से अमीटर को हटाना है और यहाँ लगाना। देन चेक द करंट, दैट विल बी I2। मान लिया मैंने वो I1 था, ये क्या मेरा I2। अंडरस्टैंड। आफ्टर दैट रिमूव फ्रॉम हेयर, यहाँ से भी इसको रिमूव करो और इसके बाद इसको यहाँ लगा दो। यहाँ लगाया, देन इसको चेक किया, I3 आया, राइट। फिर इसको फिर यहाँ से रिमूव करो, कहीं भी लगा दो, आपकी मर्जी है, यहाँ लगा दो या कहीं भी लगा दो। आपने यहाँ लगाया, सॉरी यहाँ नेगेटिव और यहाँ राइट, ये मान लो I4 मीन्स we place the ammeter in the different direction point in your series combination and you have checked I1, I2, I3 and I4. हिमांशी, कभी भी अमीटर को पैरेलल में ज्वाइन नहीं कर सकते। पैरेलल में ज्वाइन तो सिर्फ और सिर्फ वोल्टामीटर, दैट इज द कंडीशन गिवन बाय द अमीटर कि जो आपका अमीटर होगा that will be always connected in the series so that we can check the current, how much current is flowing through the sun. Okay, so I1, I2, I3 and I4 हमने क्या कर लिया, यहाँ पे चेक कर लिए। and when you connect these and you will check in all these cases I1 is equal to I2 and I2 is equal to I3 is equal to I4, that is equal to I. Means when you connect the ammeter in any position in your series combination, what will you check? You will see that the current is flowing through the circuit is same at any point. आप यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कहीं भी आप अमीटर को रखना, जहां भी रखोगे the current will be flowing through the circuit will be same in the series combination. Understand? जब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं तो करंट आपका क्या रह रहा है, सेम ले रहा है। अब जब रेजिस्टेंस है, अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कि करंट is constant when passes through series combination. यानी I is equal to constant। हमारा क्या कांस्टेंट हो गया, I कांस्टेंट हो गया, I हर जगह पे क्या हो गया, सेम हो गया। अब हमने क्या लगाना है, वोल्टामीटर। अब दूसरी एक्टिविटी क्या कहती है कि वोल्टामीटर लगाओ एंड चेक द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स और बिटवीन दिस एंड दिस पॉइंट इज सेम टू दैट। यानी करंट तो हमने कांस्टेंट लगा दिया, V इज इक्वल टू IR है, R मेरे अलग अलग है हर केस में, करंट मेरा सेम हो रहा है, so whether the potential difference will be same or not, that can be calculated by using the another activity. In the another activity, what you have to do, you have to take a voltmeter and connect between this point and this point. We remember, पहले हम इसमें ज्वाइन करें, right? That will be V. V चेक करो, जितनी भी वोल्टेज आई है, that will be volt, right? अब हमने यहाँ पे इसको कनेक्ट किया और देखा इस x और इस y के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जिसके अंदर तीनों के तीनों आपके रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो उससे हमारा क्या निकल गया, V निकल गया, दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स व्हिच पॉइंट योर x एंड द y। अब आपको क्या करना है, उसके बाद सुनना ध्यान से, यू हैव टू टेक द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको हटाना है एंड व्हाट यू हैव टू डू, इस अमीटर को हम यहाँ लगा देते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा बनाना डायग्राम।
make this one V, यहाँ positive और यहाँ negative. After that, one point here, this one, and one will be here. V1, V2, and V3. Means we will use the 3 voltmeters and connected them. This is point P. X मानना था, वो Y था. मान लो इसको मैं P मान दूं, इसको मैं Q, इसको R और इसको आपका Y हो. नहीं, इसको R और ये क्या हो गया हमारा S, right? So check the potential difference between X and P. ऐसे लिखो, X and P के बीच में potential difference check करो. That will be equal to V1. After that, check the potential difference between the X, Q and R. That will be equal to V2. उसके बाद आप किसके बीच में करोगे? S and Y के बीच में करोगे. That will be equal to V2. And check whether the V1, V2 and V3 are same or no, or whether they are same as that of the total voltage difference between the X and the Y. What will you see? That this potential difference V1, V2 and V3 are not same and they are different from each other. Why they are different from each other? Because the current is constant, then potential difference will depend on the resistance according to the Ohm's law. According to Ohm's law, जब हम करंट को सेम कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो किसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट हो जाएगी? रेजिस्टेंस के ऊपर. यदि मेरे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस के होंगे तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? आपका अलग अलग हो जाएगा. So V1 is different from the V2 and V3. V2 is different from the V3 and V3 is different from the V1. और ये जो तीनों है ये इससे क्या होंगे? आपके अलग होंगे. किससे? So when we will check that, when we will sum V1 plus V2 plus V3, that will be equal to the V. That is the potential difference between the 2 points X and the Y. And that is the potential difference between X and Y. Understand? नहीं समझ में आया, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ. ये जैसे आपको सीरीज कॉम्बिनेशन इतना समझ में आएगा, it is very easy for you to calculate the numericals related to that. अभी इसकी मैंने सिर्फ इतना बताया, अभी इसकी मैंने एक्सप्रेशन पूरी नहीं करवाई, ना मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताया इसमें, अभी मैं सिर्फ वोल्टेज बता दूँ. Is there any doubt related to this point? No. Okay. So we can say that V is equal to V1 plus V2 plus V3. Ma'am? Yes, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग बेटा, बोलो. मैम जो रेजिस्टेंस है वो करंट को फ्लो होने से रोकती है, रेजिस्ट करती है, तो फिर जो करंट है वो कांस्टेंट कैसे हो सकता है? मैंने क्या कहा था कि रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं है. मैंने कहा था रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग मटेरियल विच रजिस्ट करते पूरा किसी भी तरह से उसको नहीं रोकता, करंट उसके अंदर से जाएगा. अब आपके घरों में एक कमरे में चार्ज गई हुई है, सुनो एक बार, उसमें आपने बहुत सारे अप्लायंसेस लगाए, इसमें बल्ब भी है, फैन भी है, सारे लगे हुए हैं. तो वो क्या सीरीज में, जैसे आपके एमसीबी है घर पे, तो जब एमसीबी घर पे होता है तो डाउन होता है तो एक पर्टिकुलर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं वो सारे गिरते हैं. यानी वो किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं. यानी उनके अंदर से करंट फ्लो करेगा. रजिस्ट करता है, बिल्कुल रोकता नहीं है, स्टॉप नहीं करता. अंडरस्टैंड? मैम रेजिस्ट करते तो फिर अलग अलग करंट आना चाहिए ना, सेम थोड़ी ना आएगा. क्यों आना चाहिए? सेम आएगा, बिकॉज पूरी वायर में से एक जैसा करंट फ्लो कर रहा है. ये देखो, हमने यही तो कहा कि जो पहली एक्टिविटी थी मैंने वही तो बताई कि आप उसको यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ करो या यहाँ करो, कहीं भी कनेक्ट करो, द करंट विल बी सेम. ये भी स्कूल खुले होते हैं, मैं आपको ये एक्टिविटी स्कूल में करके दिखाती बेटा. मैम तो फिर हम हाँ बोलो. तो फिर हम ये कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है वो सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस को रेजिस्ट करती है, ना कि इलेक्ट्रिक करंट को. नहीं, ये नहीं कह सकते. ये डिपेंड करेगा कि आपके जो रेजिस्टेंस है किस कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं. अभी तो मैं सीरीज से बता रही, मैंने सीरीज में कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस सबका अलग अलग होगा,
क्योंकि जब मैंने एक्टिविटी के थ्रू चेक किया तो हर जगह जो करंट है वो सेम रहा। जब मेरा करंट सेम हो गया तो V किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब मैं पैरेलल में जाऊंगी तो मेरी वोल्टेज सेम जाएगी सबके अंदर, उसमें करंट डिफरेंट जाएगा। दैट विल बी एक्सप्लेन थ्रू द एक्टिविटीज। ये अपने आप मन गढ़त नहीं किया हुआ, ये एक्टिविटीज के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। अभी मैंने पहली एक्टिविटी में ये तो बताया कि मीटर को मैंने एक बार यहाँ रखा, एक बार यहाँ रखा, एक बार एक्स में रखा, एक बार बीच में रखा, एक बार वहां रखा। हर जगह मैंने उसको जब चेक किया तो करंट आपका क्या आया, सेम आया। ओके मैम, ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। एक्टिविटी स्कूल में गए तो जरूर दिखाऊंगी मैं फिजिक्स की लैब में, ठीक है। हिमांशी रोज को देर ना। यस हिमांशी। मैम आपने V2 और V3 में जो ये Q R S Y इन दोनों को माइनस किया है, तो आपने फर्स्ट वाले में माइनस क्यों नहीं किया? तब क्या माइनस, ये तो एंड का मतलब है बेटा, एंड क्या हुआ रहा है इसमें, ये ओके मैम। ये तो वैसे लिख देते हैं, बोला तो मैंने यही था Q एंड R के बीच में, S और Y के बीच, यानी इसके बीच में और इसके बीच में चेक किया तो V1 आया, इसके और इसके बीच में चेक किया तो V2 आया, और S और Y के बीच में चेक किया तो V3 आया। और जो हमने यहाँ पे सबसे पहले ऐसे करके लगाया हुआ था वोल्टामीटर, उसको हमने क्या माना था, V माना था। तो ये किसके बराबर आया आपका, V के बराबर आया। अंडरस्टैंड? ओके मैम। राइट। अब V1 is equal to V2, V1 plus V2 is equal to plus V3 is equal to V. That will be the potential difference between the X and Y. X और Y के बीच में जो potential difference है, that is the sum of the voltage or the potential difference applied at the different point in your resistor. ये resistors में जो भी पैरेलल में जुड़े हुए हैं, जितने भी resistors होंगे आपके, जो resistance ऑफर करते हैं, तो वहां पे आपका क्या होगा, करंट है वो सेम रहेगा, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी डिफरेंट, एंड दैट विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, राइट। तो V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3, right? If we have to calculate the resistance, resistance is equal to V upon में I, right? अब देखो constant हर डायरेक्शन में क्या आपका सेम है, that will be equal to, यानी R1 is equal to V1 upon में I. You can say that. What is that? You have to calculate that. So IR1 is equal to V1, IR2 is equal to V2, IR3 is equal to V3, and when we calculate that, so I1 plus I2 plus I3, I तो सब है constant है इसके अंदर हर जगह पे, और जो V1 ये इक्वल का निशान लगा सकते हैं इसको, V1 is plus V2 plus V3 is equal to V। V करे तो R1 किसके बराबर हो गया, R टोटल, R1 plus R2 plus R3, right? देखो V is equal to IR according to Ohm's law, V1 is equal to IR1, V2 is equal to IR2, V3 is equal to IR3, R is equal to VI है, ये लगाना है, नहीं लगा कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका जो करंट साइन के में कांस्टेंट था, तो जब ये चीजें सारी हमारी कांस्टेंट होगी तो V किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके बराबर आ गया, V के बराबर आ गया। तो R किसके बराबर आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, that will be the equivalent resistance. It is known as equivalent resistance, means total resistance in the circuit, whether it will be in your series combination or either it will be your parallel combination. Means when we are going to connect that in the series, then R is equal to R1 plus R2 plus R3, and that will be equal to 1 ohm plus 2 ohm plus 3 ohm. So that will be equal to RS. Now S लगाओ series combination. So that will be equal to कितना हो गया, 6 ohm. And if I will say that there are the 3 batteries, that will be 4.5 volts. Means potential difference will be 5 volts. So you can easily calculate potential difference. यहाँ पे आपको पूरा का पूरा पता चल गया, 4.5 है, यानी V1 plus V2 plus V3 आपका कितना गया, 4.5,
So V is equal to IR. You can easily calculate the current from this circuit. और अदरवाइज यहाँ पे 1.5 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, या 1 आ रहा है, तो उन तीनों को प्लस करोगे तब भी आपका आ जाएगा, और यू कैन इजीली कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, so that is the resistance in the series. We will discuss one or two numerical related to that. These are the two activities 12.4 and 12.5. इन दोनों को एक बार दोबारा से पढ़ लेना, so that it is easy to understand the topic of resistance in the series. अब an electric lamp whose resistance is 20 ohm. इलेक्ट्रिकल लैंप लिया जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है. जैसे कि मैंने ये एक्टिविटी एक्सप्लेन किया, अभी थोड़ी देर में मैं वीडियो भेज दूंगी. यू कैन सी फ्रॉम दैट वीडियो. इफ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई विल एक्सप्लेन टुमारो आल्सो. अगेन दोनों के दोनों सीरीज जो पहले कॉम्बिनेशन के दोबारा बता दूंगी. और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस पासिंग थ्रू द सर्किट, कि टोटल कितना रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर से जा रहा है. सेजल, यस सेजल. मैम. हाँ बोलो. मैम मैं आपसे ये पूछ रही थी, जो आपने वो डायग्राम बनाया था. हाँ बोलो. V1, जो डायग्राम आपने बनाया V1 V2 वाला, वो मतलब आपने दिखाने के लिए बनाया है, एग्जाम में वो बनाना है? वो तो डिपेंड करता है एक्टिविटी आएगी नहीं आएगी, पर इससे रिलेटेड मोस्टली न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके. ठीक है, जो अब मैं शुरू करवा रही हूँ न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं. अब इन्होंने क्या कहा, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm, a conductor of 4 ohm resistance are also connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance. यानी आपको टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सीरीज में जुड़े हुए हैं. दूसरा, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट. एंड थर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच में, लैम्प एंड कंडक्टर. ये देखो इन्होंने कहा दो रेजिस्टेंस. मान लो मैं इसको 20 ओम दूं R1, और मैं इसको 4 ओम दूं, that will be equal to R2, and this is your circuit, and here is the battery of 6 volt. 6 volt के लगाने तो 4 सेल लगा दीजिए, और यहाँ हो गया, यहाँ का मीटर हो गया, और यहाँ पे आपके वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट. पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. फर्स्ट आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस. As both are connected in the series, then equivalent resistance that will be equal to sum of the R1 and R2. Right? First R1 कितना दिया 20 ohm, ये कितना दिया 4 ohm, टोटल कितना हो गया 24 ohm. Right? तो पहले हमारा निकल गया. As I is equal to IR according to the Ohm's law of the activity done, that current flowing through the circuit in the series combination will be same. So then V is equal to IR. V कितना दिया हुआ आपको 6 वोल्ट दिया हुआ है. I आपको कैलकुलेट करना है इंटू 24 ओम. I is equal to 6 by 24, 1 by 4, 0.25 एम्पियर. राइट? तो आपका क्या निकल गया, करंट निकल गया. करंट विल बी सेम. रेजिस्टेंस आपकी, अब देखो इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी V1 और इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगी V2, अकॉर्डिंग टू द एक्टिविटी दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. मुझे किसके अंदर निकालनी है. अब मेरे पास करंट निकल गया. करंट कितना है 0.25 एम्पियर. लिसन, 0.25 यानी पूरे सर्किट में से जो करंट है वो 0.25 एम्पियर का जा रहा है. अब इसकी निकालना है मुझे या इससे निकालना है. इन्होंने कहा बिटवीन कंडक्टर और लैंप के बीच में निकालना है, तो यानी आपने यहाँ पे निकालना करंट वोल्टेज. तो इसके लिए R कितना हो गया आपका 4 ओम. ये आपका हो गया V इज इक्वल टू IR. तो ये 0.25 इंटू में 4, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे कितना हो गया 1 वोल्ट. राइट? तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 20 ओम और इसके बीच में से कितना वोल्टेज डिफरेंस है वो मुझे बताना. दैट विल बी इक्वल टू दी VI
V2 निकालने के हिसाब से कह सकते हैं हम। एंड करंट मेरा सेम था 0.25, मेरा यहाँ पे कितना हो गया आपका, बोलो 4 ओम हो गया, तो I इज इक्वल टू 1 वोल्ट है। अब मान लो मुझे इसका निकालना होता तो मैं लिखती V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू V1 लगा दो, इसको V2 रहने दो, 0.25 इंटू में कितना है 20, तो कितना हो गया 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट प्लस 1 वोल्ट टोटल कितना वोल्टेज हो गया जो हमें दिया गया 6 वोल्ट, राइट। यानी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू total potential difference applied to the circuit. That is the numerical related to that. कल पैरेलल कॉम्बिनेशन का समझा के उसके बाद परसों मैं सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल पॉसिबल होंगे से 10-12 जितने भी हो सकते हैं 1-2 पीरियड में, we will discuss. ओके, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कल शुरू करूंगी इसका। Is there any doubt?